Okay, good. So the recording has started, and we would like to start with the national anthem. Is that okay? Yes? Okay, so let me just play the music. मेरी glowing skin के लिए no concealer. Start the line even and nothing happened. Even then, we should ask them to why you started the line. Why you. So this is also one point where you have to. You can all stand up. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे Okay, Jai Hind, and thank you all for giving that respect to our well-deserved Indian flag. We all love it. So let us start today's session. Are you expecting any more of your friends to join in? Are we expecting any more people to join in? No. Okay, no issues. We'll start with our first session today and we'll see how it goes. If we would like to do more of such sessions, I'll form a group later on, okay? So that we can utilize our free time too. All right? Okay. चलो अब मुझे सब बताओ कि आज सब कैसा फील कर रहे हो, आज का दिन कैसा हुआ सबका. So how did you all start, starting from your morning routine? So who would like to start first? और आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे विद देयर कैम्स ऑन सो दैट ऑल ऑफ अस कैन गेट फेमिलियर, बिकॉज हम सब वैसे एक दूसरे को शायद लाइक मैं तो जानती हूँ सबको, पर आपस में हम लोग नहीं जानते हैं अभी, राइट? तो वी विल गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलो. हु वुड लाइक टू स्टार्ट? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इज दैट इजी? आवाज आ रही है मेरी? मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की. Yes, guys, it's Republic Day and it's the 73rd Republic Day, right? Yes? Are you all excited? Yeah. कुछ नया फील कर रहे हैं या करना है? पेट्रियोटिक फील कर रहे हैं बस आज. Patriotic रेगुलर feel डे कर. से ज्यादा. Correct. Yes, no doubt. Okay, चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. कोई भी स्टार्ट करो. Hello everyone, my name is Anushka and I study in 8th grade and I live here in Allahabad, Prayagraj. Hello everyone. Okay, so this is Anushka Mahindra and she is from Allahabad, studying in standard 8, right? Anushka, how old are you? 13 and I'll be turning 14. Okay, welcome to the session, Anushka. Okay, who would like to go next? Hello, my name is Rushi. I'm in college. I'm 20 years old. Okay. And this is my sister. Hi, I'm Ishita and I'm in the 9th grade.
All right, Rushi and Ishita, thank you so much for coming and welcome to the session. And who would go next? Thank you. Okay. Hi, my name is Millie and I'm in class 12. Okay. I live in Allahabad. Okay. Thank you. All right. So, Millie, you are in standard 12th and you are from Allahabad too. Okay. Are you both sisters? Anushka and Millie, are you both sisters? Yes? Yes. Yeah. Yes. Good to see you both joined in from your devices in the same home. And a big thank you to you both. Welcome to the session. Okay, so we see Bhagya Lakshmi, Alicia. Please introduce yourself, both of you. Good evening, ma'am. Good evening. Who's this? Alicia. Ma'am, Ma'am Bhagya Bhag- Lakshmi. Okay, yes, Bhagya Lakshmi. Can I see you? Yes, ma'am. Right, we all want to see you. Yes? Hello. Hello. Can't hear you, Vidya. Unmute yourself. Unmute, please. Yes, Bhagya Lakshmi. So you are Bhagya Lakshmi Patra. And where are you from? Ma'am, I'm from Jamshedpur. Okay, I good. study in Central Public School in the 8th standard. All right. Thank you very much, Bhagya Lakshmi, for coming to this first session. And we hope to talk more today about India, about ourselves, and we'll try to make the session interactive. Yes, you all know that the session will be recorded and it will go on YouTube. Yes, ma'am. Yes, and then you all can share it with other friends and relatives so that they can also come and join us next time, and we can have some, very knowledgeable and exciting discussions about the things that we like to do. Yes. Okay. Yes, ma'am. So thank you, Bhagya Lakshmi. Who else is there? Alicia is there. I can see Alicia. Can you please introduce yourself quickly? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello. Hello, my name is Alicia and I am from Jamshedpur and I study in Standard 8 in Central Public School. Okay, so you two are from Central Public School, Jamshedpur. Thank you so much, and we all welcome you to this session celebrating 73rd Republic Day. Galaxy J2 2016. Who is this, please? Can you please put your name there and also come on the cam for some time and do a quick introduction about yourself? Galaxy J2. प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए भी काफी होगा वी वुड लाइक टू सी हु ऑल आर देयर एंड यू ऑल नो दैट यू विल बी गोइंग ऑन YouTube, so please introduce yourself. Okay, no worries, she has left, she or he. ठीक है, चलो हम लोग कुछ बातें स्टार्ट करते हैं आज. तो आज का मॉर्निंग रूटीन कैसा था? सब लोग पहले ये बताओ मुझे एक एक करके कि आज सुबह सुबह कैसी फीलिंग आई? कुछ डिफरेंट लगा? स्कूल को मिस किया? क्या फील हुआ आज सुबह सुबह? सब टाइमली उठे थे? यस, ऑल वेकिंग अप ऑन टाइम. आज क्लासेस नहीं होंगी. यस, ओके. तो बिल्डिंग में, अपार्टमेंट्स में, did you all have celebrations अपने neighborhood में? कुछ था? Yes? Yes. Okay, good. So are you all proud of being an Indian? Yes. Yes, सबको कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए, फैमिली के लिए. Yes, very nice. Okay, ठीक है. तो मुझे सब बताओ कि आज अभी आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जस्ट एट द मोमेंट एकदम फ्री होके बताओ कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो. I just want to know your thoughts and feelings right now. Just missing school. That's it. Yeah. स्कूल में celebration बहुत अच्छे से होती थी friends and all के साथ. And Correct. flag hoisting and everything. So. Right. It's very natural, yes. School students के लिए और childhood age में it's a very important place for all of us to be there. हमारा एक own world होता है where we are free to talk, interact with our friends, teachers. So yes, it definitely is a challenging time हम सबके लिए
जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, सबके लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन समहाउ रुक जा रहा है, राइट? डिजिटल लाइफ में वो मजा नहीं आ रहा है, राइट? दिस इज ओनली फॉर सम टाइम, ठीक है, जरूरत है, टेक्नोलॉजी है तो हम उसे यूज करें, बट देन द एवरीडे इंटरेक्शन, व्हेन यू मीट पीपल इन पर्सन एंड व्हेन यू टॉक टू देम, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज दैट हैपेंस, और उससे ही आती है वो सारी फीलिंग्स, राइट? और अब अनुष्का बताएगी। अनुष्का, आज कैसा फील हो रहा है बेटा? कैसे उठे सुबह? हाउ वाज योर रूटीन? To be honest, मैं उठी सुबह and as usual 8:30 पे ऑनलाइन क्लासेस थी and I was shocked that I am late. उसके बाद देखा नहीं 26 जनवरी आज लेट नहीं है हम लोग. Okay. उसके बाद then I had the usual, then I brushed my teeth earlier and then I gone to breakfast. ओके ओके, कुछ सेलिब्रेशन थी आपके वहां पे अपार्टमेंट्स में? बहुत वॉइस कम आ रहा है अनुष्का, आपका वॉल्यूम एक बार चेक करना. I went down for the flag hosting and there are some dances there, some Okay. children were singing and it was really enjoyable. हाँ, इट्स रेनिंग एवरीवेयर, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ. तो आप भी थे कुछ प्रोग्राम में? थे आज आप? No, नो, ओके, नो प्रॉब्लम. क्लासेस भी थी? आज भी क्लासेस थी? no classes नहीं थी. ओके ओके. I was regular ना कि हाँ, at हाँ. this time classes we have to get ready on the point. So I got ready and then remember it's 26th January. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस. ठीक है, और कौन बताएगा आज की फीलिंग्स, आज के प्रेजेंट मोमेंट के थॉट्स और फीलिंग्स? और कौन बताएगा? अलीशा, भाग्य लक्ष्मी, मिली? सब बोलेंगे, वैसे ही बहुत कम लोग हैं सेशन में, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, राइट? सबको दिखना चाहिए ना कि सब लोग बात कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, चलो मुझे कुछ कुछ बताओ जरा इंडिया के बारे में और रिपब्लिक डे के बारे में. क्या समझते हो सब? रिपब्लिक डे से क्या समझते हो? यस, एनीवन? Republic Day, what is the difference between Republic Day and an Independence Day? बताओ. Ma'am, may I? Yeah, sure. Who is this? अनुष्का? Ma'am, Bhagya Lakshmi. हाँ, भाग्य लक्ष्मी, बोलो. Ma'am, on Independence Day, our country became independent, and on Republic Day, our constitution was made on Right. 26 January 1950. Correct. Very nice. Very good. And who made this constitution? Who framed the constitution? Ma'am, Dr. B.R. Ambedkar. Right. Very nice. Okay. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज दैट ग्रेट पर्सन जिन्होंने हमारी कंट्री के फर्स्ट लॉज बनाए थे कि हमारी कंट्री कैसे रन करेगी. नाउ व्हाई डू यू थिंक वी नीड लॉज? क्या बिना लॉज के कंट्री नहीं चल सकती? व्हाट आर एक्चुअली लॉज? क्या होता है ये सब? लॉज वॉज क्या होता है ये? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड लॉज? अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे कि ये लॉज क्या होते हैं? कोई छोटा बच्चा है या कोई विलेजर है मे बी, उसको नहीं पता कि लॉज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम उसको कैसे समझाएंगे नॉर्मल लैंग्वेज में? एनीवन? हाँ जी, बोलो. सबने नाश्ता किया? खाना हो गया? लंच भी हो गया? इट्स ऑलमोस्ट 3:30. यस, मैंने नहीं किया. खाने के बाद कुछ काम नहीं होता, लेजीनेस फील होती है. चलो बताओ मेरे को, आप लोग जो बोलोगे आपके फ्रेंड्स देखेंगे. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट एंड स्पीक अप. क्या जरूरत है लॉज की? और हम इफ यू टॉक अबाउट इट इन लेमेन्स टर्म, एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हम किसी को क्या समझाएंगे कि लॉज क्या होते हैं? क्यों जरूरी है किसी कंट्री में लॉज होना, या कहीं पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस? ये सब क्या जरूरत है इस सब की? ताकि कंट्री स्मूथली चले, ज्यादा क्रिमिनल चीजें ना हो, Hmm. एवरीथिंग. Right. Rules Correct. kind of, yeah. Yes. Rules and regulations, ताकि एक कंट्री
पर्टिकुलर पाथ पर चले. अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो यस, क्रिमिनल्स, क्राइम, इवल्स, कोई हो जाएगा. राइट, कोई भी कुछ भी फॉलो ही नहीं करेगा, सब अपने मन से ही जाते रहेंगे. कोई लीडर ही नहीं होगा जिसका जो मन में आएगा करेगा, कहीं भी सोएगा, कहीं भी खाएगा, कभी भी उठेगा. तो ऐसे तो कोई कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती ना. हमारे स्कूल्स में भी लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, राइट. ऐसे ही हमारे घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर रूटीन दैट द फैमिली फॉलोज, राइट. मम्मी है, पापा है, सबका रूटीन है. बच्चे हैं, स्कूल जाना है, उनका भी रूटीन है. अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं पे स्टक होके रह जाएंगे, राइट. सो दैट इज वाई रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पर्सनल लेवल पे भी जरूरी है, और किसी कंट्री को आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये लॉज जो बनाए जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाता है वो जरूरी है. एक फ्रेमवर्क होना कि हमारी कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी, और कंट्री के जो लोग हैं उनको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, right. So that is the whole purpose of celebrating the Republic Day, because it is said that India became republic on this day when actually constitution came into action 1950. वरना तो इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ बीच में हो रहा था जिसको सेटल डाउन होने की जरूरत थी. तो ये पूरे 3 सालों में काम हुआ, और उसके बाद हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लाया, जिसके ऊपर अब हम लोग वर्क करते हैं. और उसमें भी जो चेंजेस की जरूरत है वो सब किए जा रहे हैं, ताकि हम लोग ऐसी बातों से आगे बढ़ें जो हमारे लिए उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है. ओके. अच्छा, सेशन के बीच में अगर किसी को कुछ बात करनी हो इंटरेस्टिंग सी तो कर सकते हैं. ओके, ठीक है. दिस इज लाइक अ फ्री टॉक प्लेटफॉर्म. जो भी आपके व्यूज हो, जो भी आपकी फीलिंग्स हो, समथिंग अनोइंग यू, समथिंग दैट यू रियली लाइक टू डू. ठीक है, पैंडेमिक का टाइम है, अभी जा रहा है, खत्म हो रहा है. अभी आप लोग के वैक्सीन तो आ गए, बड़े बच्चों के फटाफट लग भी रहे हैं, है ना. स्पीड में खुल जाएगा स्कूल में भी. लेट्स सी, 3 months 4 months टाइम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना. तो हमें बहुत कुछ करना है ना, है ना. और जब हम पर्सनल लाइफ में करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड वी सॉ अबाउट द रिपब्लिक डे, कि हमको पर्पस समझ में आया. Shubham Pandey, I see joining in. Shubham, can you give a little introduction about yourself बेटा? थोड़ा सा लेट दिख रहे हो, बाकी सब लोगों ने इंट्रोड्यूस किया. Would you like to introduce yourself? Unmute, please. Yes, teacher. Yes, Shubham, आप कहाँ से हो, कितने इयर्स के हो, कौन से क्लास के, कौन से स्कूल से हो? Good morning, teachers and my dear friends. My name is Shubham Pandey and I am from class 4B. My school name is Kerala Public School, Kadma. And I am from Kadma, Jamshedpur. Thank you. Okay, Shubham, did you say you are in class 4B? Yes, teacher. Okay, welcome to the session. You are the youngest one, so that's why I thought I should know. Okay. चलो ठीक है. तो हम लोग अभी बस इतना डिस्कस कर रहे थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है. ओके, सो वी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन. अच्छा, यहाँ पे आप सबको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं? यस. तो ठीक है, Yes. मुझे आप लोग कोई भी एक एक करके बताओ. फर्स्ट पिक्चर जो दिख रही है, ऑलरेडी हम लोग बोले हैं इसके बारे में. when you see this first picture, what is coming to your mind? कौन बताएगा? आप हैंड भी रेस कर सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो, ज्यादा लोग तो नहीं है अभी. So what is this first picture? Teacher, it's a picture of school. Yes, okay. तो शुभम, जब स्कूल का नाम लेते हैं, स्कूल के बारे में सोच के आपको क्या थॉट्स आते हैं? जाने का बहुत मन करता है स्कूल. Yes. So missing the school. अच्छा, ऐसी क्या चीज स्कूल में होती है जो अभी घर पे नहीं हो पा रही है, जो आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो? टीचर, टॉक विद फ्रेंड्स. टॉकिंग विद फ्रेंड्स, राइट. ओके, ठीक है. वेरी गुड शुभम.
चलो नेक्स्ट पिक्चर कौन बताएगा? नेक्स्ट पिक्चर को देख के कैसी फीलिंग आ रही है? अनुष्का आप बताओगे? टीचर हैप्पी। ओके, कौन बोला? शुभम बोला। ठीक है, 1 by 1 बोलेंगे शुभम, ठीक है? दूसरों को भी टाइम देंगे, ठीक है? अनुष्का? Second picture is basically about the craziness about going to the school. Okay. And about the crazy things that happen in the school. आपको वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है अनुष्का, साउंड बहुत कम आ रहा है, क्यों? I don't know. अच्छा, फिर से बोलना है एक बार, मेरे को बहुत हल्का साउंड आया। Basically, the second picture shows the craziness about going to the school and the happiness when you see your friends after such a long time due to this pandemic. Yes, right. So it's basically a happy expression that we see on the child, and the same kind of expression we also have when we go to school, because there's so many things that we love to do and we get to do that in the schools. Okay, third picture कौन बताएगा? थर्ड पिक्चर देख के कैसी फीलिंग आ रही है? Stress. स्ट्रेस, यस। किसने बोला? Millie. मिली। ओके, मिली को स्ट्रेस का बहुत नॉलेज है। सर पकड़ के स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस इतना कॉमन वर्ड हो गया है ना आजकल। जबरदस्ती का स्ट्रेस क्यों लेना है? स्ट्रेस, कूल रहो, इजी रहो, हो जाएगा काम, करोगे तो होगा ही, है ना? क्यों स्ट्रेस लेना है? फालतू में लोग स्ट्रेस लेते हैं। तो हम लोग नहीं लेंगे स्ट्रेस ज्यादा, हम लोग काम करेंगे और फिर इजी रहेंगे, और दूसरों को भी हम लोग इजी रहना सिखाएंगे, ठीक है? ओके, बिकॉज स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन। तो जब हम लोग नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगती हैं। तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्योंकि हम अच्छा नहीं सोच पा रहे, हम अच्छा फील नहीं कर रहे ना, तुम्हारे आसपास भी वैसे ही वैसा फीलिंग आने लगता है। तो हमको बचना है, नेगेटिव इमोशंस से बचना है हमको। अच्छा, ये देखो राइट साइड में एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस टीचर, मेडिटेशन। ओके, शुभम ने बोला। होते हैं, हाँ ऋषि, व्हाट डिड यू से? 7 चक्रास जो होते हैं बॉडी के थ्रू अलग। यस, वेरी नाइस, सो यू नो अबाउट चक्रास। चलो ऋषि अभी सबको बताएगी कि चक्रास क्या होते हैं शॉर्ट में, ताकि सब बच्चों को समझ में आए चक्रास क्या होते हैं। बिकॉज बाकियों के लिए हो सकता है नया टर्म हो ना, छोटे बच्चे भी हैं। तो यू आर द एल्डेस्ट वन, आप हो, मिली हो, बताओ चक्रास क्या होते हैं? ऐसे ही नॉर्मली। काइंड ऑफ हाँ, बेसिक आइडिया है, लाइक टॉप से शुरू होते हैं एंड नीचे तक, लाइक मेडिटेशन में यूज होते हैं ये। इट्स काइंड ऑफ थ्योरी बोलेंगे। आई थिंक बुद्धिज्म से स्टार्ट हुआ था इसका। ओके, तो अलग अलग, जैसे इसमें लिखा है थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, कर लेके। राइट। इसका मैं डिटेल्स तो फिर कभी लूंगी जरूर, जब आप लोग फ्री होगे तो हम लोग वेकेशंस में एक अच्छा सेशन क्रिएट करेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में बस इतना जान लो कि हमारी पूरी बॉडी में ना कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है? एनर्जी तो हम लोग खुद ही एक एनर्जी है, ठीक है? तो हम लोग की बॉडी में भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, नोड्स होते हैं, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे उस तरह की एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है। तो देखो जो सबसे फर्स्ट वाला एरो लगा हुआ है यहाँ पे, वहां पे 2 चक्रास दिखाए हुए हैं। देयर इज वन एट द टॉप ऑफ द हेड, तो यहाँ पे एक एनर्जी सेंटर होता है, ठीक है? और फिर यहाँ पे दिखा रहा है सेंटर ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे एक एनर्जी सेंटर होता है, ठीक है? तो फर्स्ट एरो ये दिखा रहा है कि ये हेड और सेंटर ऑफ द फोरहेड के जो 2 चक्रास या 2 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली थॉट्स क्रिएट करना, राइट? तो हमारी बॉडी में जो भी थॉट्स क्रिएट होते हैं वो इन 2 चक्रास के इफेक्ट से होते हैं, या जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो इन चक्रास को इफेक्ट करता है। इट्स लाइक बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है? तो इन चक्रास की क्लीनिंग वगैरह होती है, दैट इज अ लेटर ऑन प्रोसेस, जो आप लोग बाद में जानोगे जैसे जैसे बड़े होगे। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो ये दोनों चक्रा क्लीन रहेंगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम लोग बुरा सोचेंगे तो ये चक्रा भी डर्टी हो जाते हैं, तो सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स या चैनल्स कह लो, वो गंदे हो जाते हैं। तो गंदे अगर हो जाते हैं तो हमको फीलिंग भी वैसी वैसी आती है,
ठीक है, तो ये बस एक सिंपल लेमैन्स टर्म में इसका एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, सेकेंड एरो देखो आप लोग, फीलिंग्स का लगा हुआ है, राइट? तो फीलिंग्स का जो पोर्शन दिखाया है, योर थ्रोट रीजन एंड योर चेस्ट रीजन, यहाँ पे 2 चक्रास होते हैं, देयर इज अ थ्रोट चक्रा एंड देयर इज अ चक्रा इन द चेस्ट रीजन, हार्ट चक्रा होता है, ठीक है? और हार्ट चक्रा के नीचे भी एक होता है सोलर प्लेक्सिस, वो भी आपके फीलिंग से ही रिलेटेड होता है। तो ये 2 चक्रास या ये 2 एरिया जो है, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है। जैसे हम लोग कहते हैं किसी के लिए लव फील हो रहा है, किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, या आप देखते हो हार्ट पेशेंट्स जो हो जाते हैं वो बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं ना, हार्ट पेशेंट्स, या कुछ शॉक की न्यूज आ जाती है तो कभी कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो वो सारी फीलिंग्स जनरेट यहाँ पे होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है? देन द लास्ट वन दैट यू सी इज इमोशंस। तो 3 चक्रास यहाँ पे दिखाया है, एब्डोमिनल के नीचे में, एब्डोमिनल के पास में ही एक होता है चक्र, सोलर प्लेक्सिस, फिर नेवल चक्रास होते हैं, स्टमक चक्रास होते हैं। तो ये पूरा एरिया जो दिखाया है नीचे का 3 चक्रास, यहाँ पे हमारे इमोशंस सेट करते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग नेगेटिव इमोशंस को फील करेंगे ना, तो यहाँ से जो भी बॉडी पार्ट्स रिलेटेड है या जो भी फंक्शंस है हमारी बॉडी के इस पोर्शन में, वो इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेशन वगैरह। देखो आप लोग कभी ऐसे फील करोगे कि अगर कोई बैड न्यूज हमको मिलती है तो हमारा खाने का मन नहीं करता है, कभी ऐसा फील किया है? यस, कोई दुख की न्यूज हो, किसी का लॉस कुछ हो गया हो, समथिंग दैट मेक्स अस अपसेट, तो हमारा खाने का मन नहीं करता, हम गुस्से में भी कह देते कि नहीं अभी हमें नहीं खाना है, बाद में खाएंगे। कुछ देर पहले भूख लगी लेकिन फिर कुछ बात हो गई तो हम कहते हैं नहीं खाएंगे, हमारा मन नहीं। और इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर हम बहुत खुश हैं, देयर इज सम पार्टी विद आवर फ्रेंड्स, हमारा कुछ रिजल्ट आया है अच्छा, तो वी फील वेरी हैप्पी, तो हमें भूख भी लगती है ना? तो ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अपनी पर्सनल लाइफ में हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, और अगर हम अच्छा फील करेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस पे आएगा, हमारे इमोशंस भी अच्छे होंगे, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल करेंगे अपने अंदर, तो हमारे बाहर भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग रेडिएट करते हैं एनर्जी, ठीक है? हम लोग एक एनर्जी का चैनल की तरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास अच्छी एनर्जी क्रिएट हो, तो हमको अपने अंदर से उस अच्छी एनर्जी को क्रिएट करना है, ओके? एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव स्टफ एंड द नेगेटिव एनवायरमेंट्स, राइट? ठीक है, ये बात अभी थोड़ी सी समझ में आई? बोरिंग तो नहीं लग रहा? ठीक है, मेक सेंस? Can we all relate to this with our real life? Okay, चलो अभी नेक्स्ट पिक्चर स्लाइड देखते हैं हम लोग। What does it say? कौन पढ़ेगा, क्या लिखा है इसमें? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। तो क्या समझते हैं हम सेल्फ डिसिप्लिन से? क्या मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन का? मतलब दूसरे के घर में जाओ, उसको उठाओ, जल्दी उठो जल्दी उठो, फ्रेंड्स को बोलो अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए उठे नहीं, ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन? दूसरे को सही सही कहना, गलत गलत से सही पे लेके आना, ये होता है क्या सेल्फ डिसिप्लिन? हमेशा दूसरों को बोलते रहना तुम ये सही करो, तुम ये सही करो, और खुद गड़बड़ करते रहना, ये होता है क्या सेल्फ डिसिप्लिन? कह सकते हैं क्या हम लोग इसको? नहीं, सेल्फ का मतलब क्या हुआ? हम खुद, राइट? हम खुद, वी आर सेल्व्स। और डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ? अनुशासन हिंदी में, जिसको कि कहते हैं हम लोग अगेन दोज रूल्स रेगुलेशंस, कि हम अपने लिए एक ट्रैक बनाएं, राइट? क्योंकि अगर ट्रैक नहीं होगा तो कहीं भी जाएगी लाइफ, तो चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर हमारे खुद के अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कहीं पे लैंड नहीं कर पाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। Why it is important? Self-discipline keeps ourselves